Friends, let's start. Friends, I'm going to speak to you about the hypocrisy of Mr. Modi and the BJP regarding national security, regarding law and order, public order, safety. It is very clear that for the BJP and Mr. Modi in particular, national security is nothing but a stick to use politically. It is nothing but a ploy for chest thumping, for talking about this fake 56-inch chest. It is something which he remembers during elections. It is something to whip up jingoism. But when you come to the nitty-gritty, to concrete actions taken on this subject, you find how hollow this chest thumping is, how minimal is the actual action, and how maximal is the negligence on national security issues by Mr. Modi. And the example I have for you is the recent sensational report that the Australian maritime forces, like our coastal forces, seized some 1600 crore rupees, that's in rupees, worth of heroin off the coast of Kenya in a dhow, a ship called, ironically, Lakshmi Narayan. Now, this is a haul of heroin which has been found to have originated from Gujarat. As you know, friends, Gujarat has a large, long coastline, and to maintain the border posts and the police stops and all the coastal located police stations is the job of the state government of Gujarat, with full assistance of men, material and equipment by the central government. But unfortunately, Modi government has shown huge laxity. There are hardly any properly equipped police posts on the long coastal belt line. Where this is supposed to have originated, that area, namely the border district of Kutch, the posts have been shifted by the Modi government to Vadinagar and Okha instead of Jamnagar, from where this consignment originated. A long stretch of coastal area between historic religious centers, on the one hand the Dwarka temple, on the other hand the Harshad Mata temple, has been left open for misuse by such smugglers and indeed by terrorists. Virtually none of these coastal posts, 20 to 21 in number, virtually none of them are operational. And this is after the central government has given, I am giving just a broad estimate, 30 boats to the state of Gujarat. These 30 boats have night vision cameras. They are interceptor boats apart from these, which are of 2-ton capacity, and there is one interceptor boat of 5-ton capacity. These boats, under guidelines issued by the Government of India, are obliged to patrol at least 150 kilometers of stretch every month. Over a year, at least 2,000 or 1,800 kilometers. These are targets not met under the Gujarat monitoring system. Sometimes they meet 75% of this target, sometimes lesser. We have, of course, the terrible remembrance of the November 26, 2008 incident, which also happened along this coastline. But what I am today talking about is that you are allowing this coastline to be brazenly used by smugglers,
and certainly terrorists also are and will take advantage of this laxity. This is real national security issue on the ground. It is in your backyard. You have full assistance from the from the government of India. You have special boats, you have special equipment. You are not using the manpower properly and not distributing it properly. And in this particular incident, this Lakshmi Narayan Dhao was found registered in the name of one Ashok Parmar, who has given a statement to Australian and to Indian police, Gujarat police, that he had chartered this dhao to Gujarat-based Kathiria family, one Haja Bhai Kathiria. Now this Kathiria, Haja Bhai Kathiria, who is the charterer of this Lakshmi Narayan Dhao, is the brother of two people, Kungda of Jamnagar, Haji Aziz Kungda, and the second brother is Haji Abdul Karim Kungda. Now the Haji Ali Kungda, Haji Aziz Kungda, is a BJP leader of Salaya, Jamnagar. The brother, one brother. The second brother, Haji Abdul Karim Kungda, has been elected to the Salaya municipality on a BJP symbol. And when Shri Modi went on a abhiyan to Jamnagar and Dwarka in his so-called Sadbhavna campaign, both the brothers were seen in his abhiyan, in his company, and accompanying the whole procession. So this is the reality of these crocodile tears, this chest thumping on national security, this fake badge of national security while endangering Gujarat, while endangering India. And therefore I end, friends, by asking my usual set of questions, and I am very confident that I will be met by the usual eloquent silence. And all of you and the nation through you are entitled to draw their adverse inferences from the continuing eloquent silence whenever we ask questions, pointed questions from this podium. So on the basis of what I have said, the questions are: 1. Who is responsible for this serious security lapse on the coastal area of Gujarat, which has led to the discovery of smuggling resulting in a haul of 1,032 kilograms, 1,032 kilograms of heroin, minimally worth 1,600 crore rupees. Number 2, whether the Gujarat government has not failed comprehensively, A, in not having properly spaced police posts along this sensitive coastal belt, B, in shifting some police posts from this Jamnagar Kutch area into the other area, C, very importantly, in not mobilizing, utilizing, distributing and optimally utilizing the huge number of interceptor boats and special boats given to them by the Government of India. Question number 3, whether under Mr. Modi's watch, in his backyard, under his name, under his nose, this belt has become a haven for drug smugglers and obviously, potentially and otherwise terrorists. Question number 4, whether Mr. Modi is aware that the two brothers of the person who chartered this Lakshmi Narayan Dhao are both active BJP members, one of whom represents on the BJP symbol in the municipality and the other who is an active BJP person, whether any inquiry will be conducted by Mr. Modi, whether he will never find this out and whether he will never take action. And lastly, whether Mr. Modi will tell the nation as to what specific steps, and specific is important because he is never specific. Instead of chest thumping and breast beating on national security, what specific steps are being taken to sanitize this sensitive belt from the incidents of the kind which I have described. Because, as we all know, friends, on 16th of May, this self-appointed Prime Minister in waiting
will demit office. On 16th May, this country will have 2 prime ministers in waiting from the BJP. But national security is too serious a matter to play politics with. And that is why we, and more importantly the nation, demands an answer. मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में मोदी और बीजेपी बारंबार दिन प्रतिदिन हल्ला ज़रूर करते हैं, अपने 56 इंच के सीने की बात ज़रूर करते हैं, राष्ट्रवाद और भारत और पाकिस्तान की कई वक्तव्य रखते हैं, दुहाई देते हैं। जैसे राम को चुनाव के वक्त याद करते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उसी वक्त याद करते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा श्री मोदी और बीजेपी के लिए एक राजनीतिक सनसनीखेज का सस्ता मुद्दा बन गया है। जब आप स्पष्टता पे जाते हैं, तथ्यों पे जाते हैं, तो आप पाते हैं कि उनके नाक के नीचे, उनके प्रदेश में, उनके बैकयार्ड में सबसे ज़्यादा अवहेलना, नेग्लिजेंस की गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे। और उसका उदाहरण मैं आपको संक्षेप में दे रहा हूँ। अभी हाल में अप्रैल 2014 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस, जो कोस्टल पुलिस, मैरीटाइम पुलिस होती है, उन्होंने एक नाव गुजरात की पकड़ी जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण, और उससे 1000 से ज़्यादा किलोग्राम का हीरोइन जब्त किया, जिसका न्यूनतम मूल्य 1600 करोड़ रुपए का है। मित्रों, ये तहकीकात से पूरा मालूम पड़ा है, अभी तक तहकीकात चल रही है, गुजरात पुलिस की भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, कि ये धाव निकली है गुजरात से। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि एक ये बेल्ट है, विशेष रूप से कच्छ और जामनगर का एरिया जो पाकिस्तान के निकट है, जहां पर मोदी सरकार ने पूरी अवहेलना की है राष्ट्रीय सुरक्षा की। पुलिस की जो पोस्ट्स हैं पर्याप्त नहीं हैं। जो विशेष रूप से, विस्तृत रूप से इन इलाकों में होनी चाहिए थी, वो पुलिस की पोस्ट कहीं और स्थानांतरण कर दी गई है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है द्वारका मंदिर और हर्षद माता के मंदिर के बीच में, जो बहुत ही एक शुभ स्थान माना जाता है, लेकिन उसको पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है और वो बहुत खतरनाक भी माना जाने लगा है अब राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। विशेष बात यह है और दुखद बात यह है कि केंद्र सरकार ने 30 से ज़्यादा ऐसी नावें दी हैं जिनमें सब नियंत्रण है वो, जिससे अच्छे से अच्छा कार्य मजबूती और प्रभाव के साथ किया जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। केंद्र सरकार की नियमों के अनुसार इनको लगभग 1800 किलोमीटर इन नावों को प्रतिवर्ष कवर करना आवश्यक है, यानी 150 किलोमीटर प्रति महीने। इन आंकड़ों के बहुत नीचे रही है गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस। 3/4 से कम इन आंकड़ों को पूर्ण किया गया है। लेकिन विशेष बात यह है कि इन सभी यंत्रों का इस्तेमाल, उनका वितरण बिल्कुल नहीं हो पा रहा है मोदी सरकार द्वारा, जो बार बार आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाती है। और याद रहे, इसमें सभी वो यंत्र हैं जिनको आप कहते हैं जीपीएस, ऑटोमोबाइल व्हीकल लोकेटर सिस्टम इत्यादि इत्यादि। तो मैं आपसे आपके ज़रिए जो प्रश्न पूछता हूँ हमेशा, और जिसका कभी उत्तर नहीं मिलता मोदी जी द्वारा या बीजेपी द्वारा, वो प्रश्न वापस पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये महत्व रखता है। आखिर हम भूल नहीं सकते कि 26 नवंबर को 2008 को भी इसी कोस्टलाइन, गुजरात की कोस्टलाइन का इस्तेमाल, दुरुपयोग करके पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे। तो जो इतनी बातें करता है, इतना हल्ला करता है, इतना एक माहौल बनाता है राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है जब स्पष्टता पे और तथ्यों पे आते हैं आप। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कौन है जिम्मेवार
अगर गुजरात के इतने बड़े इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवहेलना करके बोट्स, नावों का पूरी तरह से वितरण और प्रयोग और प्रभावशाली इस्तेमाल न करके 1000 किलोग्राम से ज़्यादा हीरोइन स्मगलिंग पाई गई है, जिसकी मूल्य आज कम से कम 1600 करोड़ रुपया है। कौन जिम्मेवार है इस सुरक्षा के लैप्स के विषय में? प्रश्न नंबर 2 कि क्या श्री मोदी जो लेक्चरबाजी करते हैं हमेशा, उनको ये ज्ञान है कि उनके खुद के घर में, उनके घर के पीछे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं, लंबे समय में हो रही हैं, और उन्होंने इन मुद्दों के विषय में क्या स्टेप्स लिए हैं, कृपया देश को बताएं। नंबर 3, ये नाव लक्ष्मी नारायण एक अशोक परमार की पाई गई है, जिन्होंने वक्तव्य दिया है कि उन्होंने चार्टर किया था ये कथीरिया बंधु को, कथीरिया। अब ये जो कथीरिया हैं, इनके 2 भाई हैं, हाजी अशीष कुंगडा और हाजी अब्दुल करीम कुंगडा। इन 2 भाइयों में से एक भाई सलाया म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के चिन्ह पे चुनाव लड़ा है, और दूसरा भाई एक एक्टिव बीजेपी का वर्कर है। जब सद्भावना अभियान में श्री मोदी इस इलाके गए थे तो ये दोनों भाई उनके अभियान से जुड़े थे, उनके साथ थे। तो प्रश्न ये है कि क्या मोदी जी अनभिज्ञ हैं, और अगर अब उनको ज्ञात हुआ ये सब, तो क्या वो स्पष्ट रूप से एक्शन लेने वाले हैं इस विषय में? चौथा प्रश्न कि क्या वो देश को बताएंगे कि अपने खुद के घर में, अपने इस महत्वपूर्ण प्रदेश में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में। हम मानते हैं, सब जानते हैं कि 16 मई में जो खुद नियुक्त अपने आप को करते हुए प्रधानमंत्री इंतज़ार में हैं, वो ऑफिस, अपना पद छोड़ देंगे। द सेल्फ अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग विल डिमिट ऑफिस ऑन 16 मई। हम ये भी जानते हैं कि इस तारीख के बाद बीजेपी में 2 प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होंगे। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं है, न होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है कि मोदी सरकार और श्री मोदी और बीजेपी ये स्पष्ट उत्तर दें देश को, जिनके प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं। You'll get this sheet of facts. Yes, as we speak, it will be, but the man should bend down and just distribute quietly. Yes, please carry on. Look, let us not. There are 2 other myths which Mr. Modi has been spreading. We are very happy and proud that India minimizes terror attacks. And I am not interested in doing competitive terror statistics with you or competitive communal statistics. But the facts explode this myth. Myth number 1, there have been no communal riots in Gujarat since then. There have been many, exceeding tens and tens of riots after 2002. But just because 2002 was such a mega mass killing, others may seem relatively smaller and not so serious. But he is factually completely misleading the nation. Second, I don't know whether things like Raghunath Mandir, Akshardham, etc., which have taken place either in India or parliament attack or in Gujarat, have both happened during BJP rule. During the so-called self-appointed Iron Man of that time and the present Prime Minister in waiting. So I think it's no point misleading people. We are very happy and proud that India as a whole. Did you know the remarkable reduction in terror incidents and casualties in Kashmir in the last 10 years? It is a dramatic, and I don't want to tom-tom it because it's not something on which we want to say things like this. But since you're asking a question,
Any other questions? नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनने के बाद जो काला धन आएगा उससे टैक्स पेयर जो है उनमें उनको बांटा जाएगा, उनको दिया जाएगा। देखिए जरा ये मुझे बताएं, आपके 98 से 2004 6 वर्ष में एक वक्तव्य, एक चिट्ठी, एक सुधार, एक कानून, एक करार, एक बीजेपी सरकार ने काले धन के विषय में किया है, आंतरिक या विदेश में? एक भी। नंबर 2, क्या एक बार अडवाणी जी, मोदी जी बोले इस विषय में? एक वक्तव्य दिखा दीजिए असेंबली में या पार्लियामेंट में। तो ये क्यों है कि सब उनको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ जब वो विपक्ष में जाते तब क्यों आते हैं ये? नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि इस सरकार ने अपने 10 वर्ष के काल में और विशेष रूप से पिछले 6 वर्षों में 89 या 94 बायलैटरल एग्रीमेंट्स, 89 या 94 बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए हैं इस विषय में, जिनमें स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं कि सीक्रेसी वेव हो जाएगी, आगे के लिए आदान प्रदान होगा तथ्यों का। तो ये सब क्या बातें हैं? ये बरगलाने की, बहकाने वाली चीज़ें हैं। ये सिर्फ राजनीतिक एक हल्ला गुल्ला करने वाली शोरगुल, जो कि टिपिकल आदत है मोदी जी की और बीजेपी की। शोरगुल करो, काम न करो, तथ्यों के आधार पर बात न करो। कुछ 4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, 5 दिन, क्या इसमें जल्दीबाजी क्या है? नहीं, मैं हमारे तो हाँ, हमारे को पूरा विश्वास है, हम ज़मीन पे काम करते हैं, हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं इलेक्शंस, हम देख रहे हैं गुब्बारा कैसे फूट रहा है दिन प्रतिदिन। बिल्कुल हम हौसले से बोल रहे हैं आपको, हम आंकड़े देने के बिज़नेस पे नहीं हैं, हम आपको बताने के बिज़नेस में हैं कि इस प्रकार के गुब्बारे, जैसा मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा गुब्बारा बताया अभी आपको, ये काले धन का मुद्दा उन्होंने उठाया बताया, जब इतने सारे गुब्बारे उड़ेंगे तो सब फूटेंगे। हम तो गुब्बारे नहीं उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए क्या रणनीति है कांग्रेस के पास, और कौन कौन से लोगों से आप लोग बातचीत? आप बहुत देर प्रश्न पूछ रहे हैं। 2 महीने से चुनाव चल रहे हैं, रणनीति आपके सामने निकली है। अब वो हम चुनाव खत्म हो गए, अब रणनीति थोड़ी बनती है, रणनीति पहले बन जाती है। जहाँ तक चुनाव के बाद का सवाल है, इस वक्त उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, बहुत हद तक आंकड़ों पे निर्भर करता है। आंकड़े आने दीजिए सबके सामने, हम आश्वस्त हैं, हम हौसले से बोल रहे हैं, विश्वास से बोल रहे हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही प्रक्रिया मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ देश के सामने। 2004 में सरकार नियुक्त हो गई थी चुनाव के आंकड़े आने से पहले, सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं आपको। 2009 में तो कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स हो गए थे कि इस बार तो बीजेपी की सरकार ज़रूर आनी ही आनी है। प्रधानमंत्री तो बन गए थे, अडवाणी जी तो प्रधानमंत्री बने हुए थे उस वक्त। और इस बार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपने आप को नियुक्त कर दिया है, वो आगे नियुक्त कर रहे हैं और लोगों को। तो अब आपके सामने, अगर आप अवहेलना करते हैं जनता जनार्दन के जनादेश को और इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो मैं समझता हूँ भारत का राजनीतिक इतिहास आपको सबक हमेशा सिखाता है और सिखाएगा इस बार भी। और अगर आप सबक नहीं सीखेंगे हर बार, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। We are not here to analyze on television channels the rightness or wrongness of something which the Chief Election Commissioner and his 2 colleagues have in a written order dealt with. Now the question ends, as far as we are concerned, that lack of permission was part of the order which has been given. It has been held to be non-culpable. If anybody is so agitated, they are welcome to take legal action. We stand by what is the official domain, public domain of a order by a statutory constitutional authority, and that's the end of the matter. आपके दोस्तों को बोलिए और anybody else? First anybody else. आप सब सेम लोग हैं. Any new person? Okay, now we'll do. एक मिनट. We'll end with these 3 now.
सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है, महत्वपूर्ण फ़र्क, कि 1 और 2 के बीच में जो फासला है और था वाराणसी में, वो काफ़ी बढ़ गया है कल के रोड शो के बाद। हमें 1 नंबर में कोई भी संदेह नहीं था कौन होगा, वो कांग्रेस का ही होगा। लेकिन 1 और 2 के बीच का जो गैप है वो कल के बाद और बढ़ गया है। और आपको ये पता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश और गुजरात से लाए हुए लोग रोड शो, एक मॉडल ए है वो, ये मॉडल एम है वो, और ये कैसा रोड शो था, कैसा एक स्वाभाविक आउटपोरिंग थी, कैसा समर्थन था, ये मॉडल दूसरा है। ये आपने देख लिया है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए घबराकर शायद कल मोदी जा रहे हैं वहाँ बनारस वोटिंग करने। अब पछताए होत क्या, कैंपेन तो नहीं कर सकते ना। No. It's a personal decision, a personal view. He's certainly entitled to. He's not gagged in this country. He has a view. From that, where do you extrapolate to an alliance straight away? सर, कल कैंपेन खत्म होने के बाद आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग में काफी तेजी आई है। कल मोदी की मुलाकात, राजनाथ सिंह की मुलाकात, क्या कांग्रेस किस तरह से? देखिए, सरकार बनाने का कोई सवाल नहीं उठता। आप ये मान के चलिए, ये बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, तो वो सरकार न बीजेपी की है, वो तो मोदी सरकार होती। लेकिन वो मोदी सरकार भी नहीं होगी, वो होती संघ सरकार। उस प्रक्रिया को आप भूल रहे हैं। जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं वो जिसका कोई चांस नहीं है, जो बनने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हार सामने है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ मैं कि आप प्रक्रिया देख रहे हैं एक संघ सरकार की। अब कौन सी राजनीतिक पार्टी है संघ, मैं नहीं जानता। कौन सी संवैधानिक दायित्व वो करती है फाइलिंग का इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में, मैं नहीं जानता। क्या उनके ऊपर पाबंदियां चलती हैं और क्या जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये है असली रिमोट कंट्रोल। आपको बार बार ये शब्द बोला जाता है और मोदी जी सबसे आगे बोलते हैं। आज रिमोट भाग रहा है कंट्रोल के पास, वो देखा है आपने। रिमोट भागा है कंट्रोल के पास, और ये लोग, ये रिमोट कंट्रोल, रियल राजनीतिक रिमोट कंट्रोल 100 वर्ष पुराना भारत का अगर है तो ये है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।